topic which I have decided for PhD in behavioral economics. The topic is mental health as an economic indicator. अच्छा, मेंटल हेल्थ एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो यू वांट टू वर्क अपॉन द एंटायर आइडिया ऑफ मेंटल हेल्थ या कोई स्पेसिफिक बीमारी या कुछ इस चीज़ पे आप काम करें? आप पूरे इंडिया को कैसे देखोगे? यू कांट डू दैट, राइट? सैम्पलिंग में भी यू हैव टू चूज एज फार एज आई एम अवेयर. सो हाउ आर यू फोकसिंग? रीजन वाइज आप फोकस कर रहे हो या कैसे करोगे? हाउ स्टेट वाइज कर रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग एट फिगर्स वाइज? आपने एमए डिसर्टेशन में जो टॉपिक लिया है दैट्स डिजिटल पेमेंट्स, है ना? So you didn't think that you should be going forward with this topic for your PhD as well? मतलब whatever you've read, you had an experience of everything. So didn't you think that topic जो PhD का है could be close to what you have already done because that would help you in this? मैम, वी हैव शिवॉय विद अस. तो शिवॉय इकोनॉमिक्स से है, उसका भी जीआरएफ क्लियर हुआ है, तो वेलकम शिवॉय सबसे Thank you, पहले. sir. Thank you, सो विल बी स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू. तो शिवॉय अपने बारे में बताइए, एंड आपको अपना नाम यूज़ नहीं करना है. Good afternoon to everyone. I have completed my schooling from Kanpur, from Dr. Virendra Public School, Kanpur. In high school, I secured 89% and with intermediate 85%. From there onwards, I pursued my graduation from Christchurch College, which is under the affiliation of Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur University, with graduation score BCom in 69%. After that, I pursued my education qualification, bachelor's in education, from Professor Chang Mishra, which is also a part of Kanpur University. There I scored 91%. I was the second rank holder of my college and fifth rank holder of my university. After that, I pursued my master's in economics from Christchurch College, Kanpur, same Kanpur University, with 8.15 CGPA. और एकेडमिक्स तो काफ़ी अच्छा है. After that, I pursued my interest in economics. So therefore, I switched to UGC NET economics exam. In first attempt, which I had given in June, I had got 98.86 percentile. There I qualified NET, but I had missed JRF by 2 questions. After that, I again restarted myself, and this time I qualified UGC NET in JRF 99.94 percentile under the guidance of Umesh sir. चलो, तो लाइक कुछ अभी जैसे आपने अपने बारे में बता दिया हम लोग को. सो पीएचडी करने का प्लान कब बना? लाइक कैसे ये सवाल दिमाग में आया कि पीएचडी कर लेते हैं? So during my masters, when I was pursuing my masters, I developed a lot of interest in economics. From there on, I started searching the different domains from where I can get more information on economics or something. I always wanted to do something good for my economy, for my country in education sector. So there on, I got to know about the information of this NET exam, from where we can pursue PhD and do integrated research for 5 years in your area of interest, which can contribute a lot to your economy, which helps in developing you as a human being, because in the 5 years you see various practical challenges. From my previous life of my theory studies, I had always been a theoretical student. I mean, the knowledge of my exposure was very less. My research knowledge, my practical application knowledge was very low. So there I decided that I would do a PhD so that I can bring my knowledge in research as well as I can connect with the real India, which is outside our college, outside our institutes, from where we get to know the real picture, which we often miss in our daily lives. So there I got this liking for PhD. You have a very clear perspective, which is a very good thing. So have you thought of a topic that you want to pursue, जिसमें Yes, आप PhD करना चाह रहे हैं? Yes, sir. तो टॉपिक के बारे में बताइए एक बार पहले. My topic which I have decided for PhD in behavioral economics, the topic is mental health as an economic indicator. अच्छा, मेंटल हेल्थ एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो यू वांट टू वर्क अपॉन द एंटायर आइडिया ऑफ मेंटल हेल्थ या कोई स्पेसिफिक बीमारी या कुछ इस चीज़ पे आप काम करना चाहते Sir, I want to work on the psychology of human in economics. Like, why is the scene that students in today's era are moving away from studies? Like, we see many students are committing suicides and all these things, which is directly related to your mental health. How this mental health is affecting students? I am considering the poverty aspect of India. How poverty is shaping the future of India? How is it affecting the future of India in the sense that we see many poor parents, they debar their students from pursuing higher education, which is directly affecting the demographic dividend of India, which we are of a strong base. So saying कि poverty is one of the major reasons for mental health problems in India. Yes, sir. तो टेक्निकली आप ये कह रहे हैं कि फिर कि जो नॉन पुअर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, तो वहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं? No, sir. That is not my point. That is also true that mental health issues is always with the
poor rich people also there are mental health issues, but the issues they are facing is far more different than the issues poor people face. Because if we talk about the poverty status of India, there are many families which are on the verge of having only a one day meal, or sometimes a meal in 2 or 3 days. So I believe that first of all we need to focus on the basic structure, which is the poor people. Until and unless we don't get them on the right track, we cannot think of a developed India, or we cannot think of using the demographic dividend properly. Because still today we see that many students, out of curiosity or out of just urge to do something, they go to graduation and post-graduation, but they are not actually doing that. They are going somewhere else because they have to feed their families, they have to focus on other things of the day. So I believe that these are the things which are affecting the real India. I believe that yes, your sir's statement is right, that rich people are also having mental problems. But I think that since we have to study in PhD, we have to focus on a specific domain. I'm considering poverty as the main domain for my studies. So you should have written poverty as an hindrance to economic value. I think yes, I'm topic को actually थोड़ा working सा on my PhD. right, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है. So आप मेंटल हेल्थ एंड इकोनॉमिक वैल्यू को रिलेट कर रहे हैं. Yes sir. आप ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पे फर्क डालता है Yes, sir. बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. Yes sir. राइट. तो अगर पॉवर्टी को हम दूर कर लें तो क्या हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही से यूज़ कर पाएंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड का आइडिया क्या होता है, पहले आप ये एक्सप्लेन करिए, फिर जो मेरा सवाल था आप उसको एक्सप्लेन करिए. Yes. सर डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है इंडिया में 18 to 65 ईयर, जिस विच वी कंसिडर that is called the demographic dividend of India, because these are those people who are going to work for the country, who are going to generate national income, who are going to contribute in the various sectors by either in production, either in services or in other domains, specific domains. So these are the people who are going to create something good for India during their obviously working time. So demographic dividend is basically the age group of working age population which is going to do something in future. आपने 18 से 65 बोला. Yes sir. क्या वो 15 से नहीं होती है? Yes sir. Are you sure? Sir, if we talk about theory, it is 15 years. Right. But as far as I believe, it should be 18. I think it should be 18 because under 18 we consider that child laws, there is child labor and all these acts. So already, if we talk about theory, it is 15 to 65 years. But I think it should be 18 to 65 years. That is why I often call 18 as the. But शिवाय चाइल्ड लेबर लॉज तो 14 years तक ही है. So 14 years से है, but I think the age of 14 to 18 years which are saying should entirely focus on education rather than working. That is my opinion, I would say. Good point. So like आपने कुछ रिसर्च मतलब करी अपने एंड से, कुछ लिटरेचर रिव्यू किया है इस टॉपिक पे? Yes sir, किया है. तो लाइक वहाँ से आपको क्या मालूम, आप किस पर्टिकुलर सवाल को बहुत स्पेसिफिकली सॉल्व करने वाले अपनी रिसर्च से? सर मैं जिस सवाल को स्पेसिफिकली सॉल्व करने वाला हूँ, बिकॉज ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, कुछ आपने नैरो डाउन किया है? Also another question again related to your literature review only. आपका एरिया मतलब आप पूरे इंडिया को कैसे देखोगे? You can't do that, right? Sampling maybe you have to choose as far as I'm aware. So how are you focusing? Region wise आप focus कर रहे हो या कैसे करोगे? How state wise कर रहे हो? What are you looking at figures wise? सर मैम आई एम लुकिंग एज अ रीजन वाइज. सबसे पहले जो टाइम है उसमें मैं रीजन वाइज ही एलोकेट कर रहा हूँ. मैं मैक्सिमम लोगों को अपने स्टडीज़ का पार्ट में रखना चाहता हूँ. आई एम थिंकिंग ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग where I will connect with the initial dots, and these dots will lead me to a bigger population. All right. I believe that snowball sampling is a good method of research because जब आप snowball sampling करके आपको एक्चुअली पता होता है कि आपका जो एरिया है आपको उसी से रिलेटेड रिस्पॉन्डेंट मिलेंगे. और ऐसा मेरा मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि स्नोबॉल सैम्पलिंग का जो सक्सेस रेट होता है, आई मीन सक्सेस रेट इन द सेंस कि अगर आप किसी और को कनेक्ट करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी के रेफरेंस से जा रहे होते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग में. तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने स्नोबॉल सैम्पलिंग को ही यूज़ करने का सोचा अपने इसमें. और अगर मैं स्पेसिफिक एरिया की बात करूँ, क्योंकि मैं कानपुर सिटी से हूँ, तो मैं सबसे पहले तो अपने कानपुर और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उन पे मैं फोकस कर रहा हूँ. जैसे कानपुर के आसपास आपका उन्नाव आता है, आपका सहजनी आता है, आपका घाटमपुर आता है, हमीरपुर आता है. ये जो 70-80 किलोमीटर्स की रेंज होती है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्टडी का पार्ट हो उसमें गरीब लोग भी हों, मिडिल क्लास भी हो, अगर अपर मिडिल क्लास भी हो, और साथ ही साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग ऐसे हों जो इस बारे में खुद के बात करना चाहें. क्योंकि सर मैम जैसे हम लोग जानते हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी आज के इंडिया में एक टैबू है. कई लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करके कोई को मानता है कि मेंटल हेल्थ जैसा कुछ होता भी नहीं है.
अगर आप आज के समय में वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात करें तो लोग इसको आइडिया ही नहीं मानते कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। ये मैंने देखा है। मैं एक्चुअली मैं ऐसा रहा हूँ कि घर में मैं थोड़ा कम रहता हूँ, मैं बाहर लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करता हूँ। मेरी फ्रेंड सर्कल तो मिल के हाँ, लेकिन उनके ज़रिए मैं काफ़ी लोगों से हमेशा बात करते रहता हूँ। मेरा एक नेचर ऐसा है। तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों को तो पहली बार इसके बारे में पता भी नहीं होता कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ होती है। मैंने ऐसे पढ़े लिखे लोग, मतलब जो एजुकेटेड लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं, उनको भी इस बारे में बात करते हुए कतराते हुए देखा है। स्पेशली मैं बॉयज़ में जो देखता हूँ, लड़कों में बीइंग अ बॉय मैंने देखा आसपास लड़के भी इस बारे में बात करेंगे बहुत कतराते हो, बिकॉज दे थिंक दैट मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ पर हम बात करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू डाउन हो गई है। कि क्वेश्चन ऑफ मैस्कुलिनिटी एज वेल, मैस्कुलिनिटी का एक एंगल आ जाता है कि यार लड़के होंगे दुखी हो सकते हैं, मतलब क्या स्टेटमेंट लड़के खुलेंगे दुखी हो सकते हैं। लड़कों को कौन सी टेंशन होती है, लड़कों को परिवार है, जिम्मेदारी। तो आई बिलीव कि हम लोग की भी एज अ बॉय, हर लड़के की भी एक मेंटल हेल्थ है, उसकी भी एक बॉडी है, उसकी भी एक नीड्स है, उसकी भी साइकोलॉजिकल नीड्स है, जो उसको भी हमें ध्यान रख के चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें आज के समय में, जो मैंने अभी तक अपने लिटरेचर रिव्यू और प्राइमरी एनालिसिस में पाया है कि जो सुसाइड रेट्स है इंडिया में, उसमें बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम हो गई हैं। ये एक ट्रेंड धीमे धीमे चेंज होगा कि जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। और अभी मैं इस बारे में बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जितने मैंने लिटरेचर रिव्यू में देखा तो उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है अपनी स्टडीज़ में कि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो उनकी फ्यूचर एस्पिरेशंस होती हैं, जिनका उनको कोई गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये उनकी खुद की एस्पिरेशंस होती हैं या सोसाइटी की एस्पिरेशंस होती हैं? सर मुझे लगता है ये उनके खुद की एस्पिरेशंस होती है जिनको बर्डन उनके पेरेंट्स कर देते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोच के कि मैं कुछ एक स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहता हूँ, या मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो जैसे ही उसने डिसाइड किया कि मम्मी पापा मैं इंजीनियर बनूंगा, तो उसके माँ बाप फिर उसको और ज़्यादा फोकस मंगाएंगे कि तुम ये करो, IIT में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ, ये इंस्टीट्यूट में जाओ। और इन केस जैसे हम जानते हैं कि इनका जो सक्सेस रेट होता है वो लेस देन 1% होता है। तो जो 1% जो कम होते हैं, जो संगत को जाके उनके लिए अच्छा रहता है, लेकिन जो 99% लोग होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता कि उनका क्या हुआ, या उनको ये नहीं पता होता कि इस फेलियर से आगे कोप अप कैसे करना। क्योंकि पेरेंट्स भी इतनी एस्पिरेशन उनके ऊपर डाल चुके होते हैं कि दे आर लाइक आई हैव नो वन टू टॉक, द राइट स्टेटमेंट इज आई हैव नो वन टू टॉक। अगर उनको जो रास्ता दिखता है वो सुसाइड दिखता है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक इशू है इंडिया में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ना सेंट्रल गवर्नमेंट बात करती है, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनी बात करती हैं, जैसे अब तो संघ बनने लगे, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड संघ बनने लगे। आज भी अगर मैं बात करूँ जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे ऐसी कोई भी संघ नहीं है। बच्चे मैंने देखा वहाँ पे परेशान होते हैं कि कोई भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग संघ नहीं होता है। तो इस बारे में भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हमारे इंडिया के डेमोग्राफिक डिवीजन को साथ ही साथ एक वेल बीइंग स्टेट को अफेक्ट करके है। शिवाय, आपने स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात करी। यस सर। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्निक है या नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्निक? सर स्नोबॉल सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्निक है। अच्छा, और ऑलराइट गुड। तो जैसे आपने कोई हाइपोथेसिस बनाई है, आपने कुछ मतलब आपका टॉपिक है यहाँ पे, कुछ हाइपोथेसिस जो आप अपनी रिसर्च में डालना चाह रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आप इस सवाल को सॉल्व करना चाह रहे हैं? सर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पे कुछ काम किया है? सर अभी मैंने कुछ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को नहीं डिसाइड किया। मैंने बस ये सोचा है कि मेरा जो डोमेन है इसमें मैं अभी एक्चुअली मैं और वर्क कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी पहुँचना नहीं चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी चीज़ पे इना हरी पहुँच जाऊँ और जो बाद में मुझे लगे कि नहीं यार मैं इस पर और काम कर सकता है, या अपने हाइपोथेसिस को आपको जल्दी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी को तो जल्दी है, उसको तो अपना एग्जाम करवाना है, एडमिशन करवाने हैं। यस सर। तो आपको थोड़ा उस टाइमलाइन को भी देना पड़ेगा। यस सर। ऑलराइट, तो जैसे कुछ मॉडल्स वगैरह देखे हैं जो आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर पाएंगे, कुछ इकोनोमेट्रिक मॉडल्स या कुछ कोई टेक्निक आपने पढ़ी हो? सर अभी को मैंने ऐसा कुछ नई मॉडल्स देखे, लेकिन हाँ मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को बेसिकली सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर, और काई स्क्वायर जो टेक्निक होती है उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ इन दोनों टूल्स को मैं यूज़ कर, मतलब इन दोनों मेथड्स को मैं यूज़ करने की सोच रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ किस तरह से इकनॉमी को, या मेंटल हेल्थ किस तरह से एक एजुकेशन को, या आगे जो उसके एस्पिरेशंस होते हैं उनको अफेक्ट करेगी, तो मुझे लगता है कोरिलेशन से मैं बेटर तो आपके हिसाब से लाइक कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपके मॉडल में, अगर आप रिग्रेशन बनाएंगे यहाँ पे मॉडल? तो सर डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली मेंटल हेल्थ होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होगा मेरा पावर की, हो सकता है पावर की ही होगा बेसिकली। तो फिर इसमें इकोनॉमिक्स कहाँ है? लाइक आपके दोनों वेरिएबल्स में इकोनॉमिक्स कहाँ है फिर? सर पावर की हम जानते हैं कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पावर की, रिलेटिव पावर की, जैसे हमारे नोबल वगैरह थे, हमारे सिंह उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया गया इसी SDI के। अमर्त्य सेन की किस अप्रोच को आप रेफर कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं? सर अमर्त्य सेन की मैं कैपेबिलिटीज अप्रोच को मैं मेंशन कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैम जैसा आप लोग भी
आई वांट टू आस्क यू इज लाइक आपने एमए डिसर्टेशन में जो टॉपिक लिया है दैट्स डिजिटल पेमेंट्स है ना. So you didn't think that you should be going forward with this topic for your PhD as well? मतलब whatever you've read, you had an experience of everything. So didn't you think that topic जो PhD का है could be close to what you have already done because that would help you in this? मतलब क्योंकि ये तो बहुत ही अलग हो गया, एक mental health है, एक digital payment है. एक्चुअली मैं जब पीएचडी का टॉपिक डिसाइड करेगा फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको अपनी मास्टर्स के डिसर्टेशन से रिलेट कर सकता हूँ. पर फिर मैंने नोटिस किया कि ये जो मास्टर्स का टॉपिक था इस पर मुझे जितना मैं रिसर्च कर सकता था मैंने ऑलरेडी कर ली है. और इससे ज़्यादा जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में बात होनी चाहिए मेंटल हेल्थ के, क्योंकि अब डिजिटल पेमेंट का जो इशू है वो धीमे सॉल्व होगा. जैसे हम देख रहे हैं आरबीआई भी अब इसमें इंटरवीन कर रहा है, कैंपेन्स हो गए, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, इसको रिलेटेड नॉलेज दी जा रही है. जो डिजिटल अरेक्स डिजिटल साइबर फ्रॉड्स आ गए इनसे रिलेटेड लोगों को अवेयर किया जा रहा है. लेकिन जो मेंटल हेल्थ जैसा टॉपिक है इसके बारे में आज भी लोग बात नहीं कर रहे. तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर मैं 5 साल में ज़्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाऊँगा. इस वजह से मैंने अपना जो टॉपिक है स्विच किया है. But you know, don't you think your topic is very general? जैसे after hearing, you said suicide rates have increased and you talked about कैसे ये taboo है. But isn't it well established? Like, I think ma'am, it's more of a psychology linked topic. That's हाँ, what I मतलब was thinking. मुझे Yeah. ये बोलना है कि देखो ये तो well established है. We all know about the growing suicide rates. We all know more about how it is a taboo. You are an economics student. Yes, ma'am. So don't you think the topic is more? And मेरे को एक बात बताओ, ये सब तो पहले से ही डेटा प्रूव कर चुके हैं. तो आप जैसे आप ये बता रहे हो कि पॉवर्टी on one angle is responsible for this, okay, but मुझे ये लगता है बहुत ही वीक टॉपिक है. एंड जो भी आप दिखाने की कोशिश करें वो तो सारे डेटाज वेल एस्टैब्लिश कर चुके हैं. एंड डोंट यू थिंक इट्स मोर ऑफ रादर देन बीइंग अ कोर इकोनॉमिक टॉपिक, ये थोड़ा सा मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ सोसाइटी ओरिएंटेड टॉपिक. Yeah. तो Humanities हाँ, and आप वो मुझे बस ये psychology बताओ का कि रहा ये है. सब तो पहले से रिसर्च है, सबको पता है सुसाइड रेट बढ़ चुके हैं. वी ऑल नो इट्स अ टैबू. तो आपकी इकोनॉमिक डेटा का टैबू से क्या रिलेशन है? मतलब आप मुझे ये लग रहा है कि डेटा आपको मिलना भी मुश्किल होगा. हाँ. एंड मोस्ट ऑफ दीज हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड. मतलब देखो हर दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकलते हैं, एडिटोरियल्स निकलते हैं, दे ऑल टॉक अबाउट दीज थिंग्स. तो मुझे ये कि इसमें स्पेसिफिक क्या है, क्योंकि ये तो पहले भी चल रहे हैं ना. तो व्हाई शुड पीपल रीड योर रिसर्च? आप फिर वही बोलोगे सुसाइड रेट ज़्यादा है, तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है. तो मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, जैसे ये डिजिटल पेमेंट वाली आपने टॉपिक कोर इकोनॉमिक उठाई, That ये fits. थोड़ा सा मुझे लगता है आप इसमें मतलब हाउ विल यू प्रोजेक्ट योर रिसर्च? मैम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी जो इकोनॉमिक्स की ग्लोबल होगी है कि हमारे सिंह उन्होंने भी इसी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे काम किया था. बेसिकली मैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे काम कर रहा हूँ जो इकोनॉमिक्स का ही एक डोमेन है. इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में हम जानते हैं कि 1776 से पहले साइकोलॉजी से लिंक होकर चलता था. इट वॉज एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्होंने 1776 में इकोनॉमिक्स को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट इस्टेब्लिश किया. उससे पहले इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी और फिलोसफी से मिलकर ही चलता था कि यूज टू स्टडी टुगेदर. तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की काफ़ी चीज़ें साइकोलॉजी से मिलती हैं. हाँ समझ गई, हिस्ट्री भी है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, ये तो वो तो भी कनेक्टेड general- है, हाँ. वो समझ रहे हैं. बट बट मेरा है कि यू नो द रिसर्च यू डू शुड contribute to something in your academic circle. You should be मतलब आप एक ऐसा टॉपिक चूज कर रहे हो जो कुछ एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है. मेरे को ये पूछना आप इसमें सॉल्व क्या कर रहे हो, ये तो हम सबको पहले से ही पता है. इस टर्म से पूछ रही हूँ. मैम मैं अपने पीएचडी में ये जो टॉपिक है मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में इस तरह की एक अवेयरनेस जनरेट हो, गवर्नमेंट में लोगों में एक अवेयरनेस जनरेट हो. जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक्स का एक कोई टॉपिक नहीं है, आई एग्री कि एकदम अगर हम कोर में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स के कोई टॉपिक में नहीं आता है. लेकिन कहीं ना कहीं एक बिहेवियर इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है जो कि एक इकोनॉमिक्स का डोमेन है. तो इस टॉपिक के ज़रिए मैं वो एंगल्स को कैच करना चाहता हूँ जिन पे अभी तक बात नहीं हो पाई है. जैसे कि सर ने अभी कोट किया कि जो रिच सेक्शंस हैं वो कभी भी उनके ऊपर कभी भी इस तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई है कि मेंटल हेल्थ. मैंने ये कोट नहीं किया था. sorry. मैंने ये कहा था कि क्या रिचर सेक्शंस में सुसाइड्स नहीं होते. Yes, sir. मैं ये पूछ रहा था, मेरा सवाल था Yes, sir. आपसे. तो सर जैसे कि सर ने बोला कि आपने सर ने पूछा कि रिचर सेक्शंस में सुसाइड रेट्स होते हैं. तो हाँ रिचर सेक्शंस में भी होते हैं और उन पर भी एक लार्ज स्केल में होता है. तो मैं जिस एरिया को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से जो ये मेंटल हेल्थ है वो इकोनॉमिक्स को कैसे अफेक्ट करेगा. जैसे आपने कहा कि ये को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है. क्योंकि सबसे पहले जो इसमें एज ब्रैकेट की अगर हम बात करें वो जो सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट्स है वो यूथ के अमंग है. ये यूथ वो है जो आगे जाके हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, जो हो सकता है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है. जैसे हम देखते हैं कि ऑलरेडी इंडिया में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में देखें तो वह ब्रेन की प्रॉब्लम. यहाँ से बहुत अच्छे जो रिसर्चर्स हैं, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, लॉरिएट्स हैं, वो अपने देश से बाहर जा रहे हैं.
को कहीं ना कहीं हम ये चीज़ में फेल कर रहे हैं कि हम किन किन चीज़ों पे बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये देश छोड़ कर जाना पड़ रहा है। वो उनको लगता है कि बाहर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है, मैं इसमें इस तरह के एंगल पे वर्क करना चाहता हूँ कि ये किस तरह से रिचर सेक्शंस को अफेक्ट कर रहा है और किस तरह से ये इकोनॉमिक्स में इस तरह से लिंक हो रहा है कि जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होता है वो स्टडी करता है कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो किस तरह से आगे उसके आने वाली जनरेशन्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर किसी फैमिली में कोई पर्सन सुसाइड करता है तो कहीं ना कहीं वो पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। ये एक साइकोलॉजी का एंगल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बिगर एंगल में देखें तो ये एज अ होल इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। ये चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन जैसे कि क्या ये इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ है क्या इस स्केल में आपके यहाँ पे सुसाइड्स हो रहे हैं किसी भी सेक्शन में, कि वो आपकी डेमोग्राफी डिविडेंड को इफेक्ट कर रहे हैं या आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं? क्या ये इतना बड़ा फैक्टर है? मतलब एक सवाल तो ये है। और जैसे आपने बात किया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में, तो अभी रिसेंटली जो है उसमें नोबेल प्राइज़ मिला था कुछ साल पहले। जी सर। तो आपको मालूम है कि किस इकोनॉमिस्ट को प्राइज़ मिला था और किस चीज़ के लिए मिला था? दो सवाल है मेरे यहाँ पे। सर सबसे पहले सर मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर करूँ कि सर मुझे इस बारे में अभी जानकारी नहीं है कि बिहेवियर इकोनॉमिक्स में किसको मिला था। इस बारे में अभी मुझे नहीं पता। रिचर्ड थैलर को दिया गया था अभी नज इकोनॉमिक्स के लिए। तो सर प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ आगे फ्यूचर के लिए जी। बाकी हाँ सर कैन यू प्लीज रिपीट योर फर्स्ट क्वेश्चन? माय क्वेश्चन वाज कि इज आर दीस नंबर्स ऑफ सुसाइड सो सिग्निफिकेंट कि दे विल इफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री? Sir, these numbers are really so significant that they will affect the economic growth of a country, because if we generally talk about, जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इतना अफेक्ट करता है इकोनॉमिक्स को, कि हाँ ये इस तरह से अफेक्ट करता है कि अगर हम डायरेक्टली ये बात करें तो हम ये देखते हैं कि किसी पर्सन एक्स ने अगर सुसाइड किया तो उसकी फैमिली को अफेक्ट हुआ, लेकिन इससे जो कहते हैं डोमिनो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक लार्जर स्केल में काफ़ी लोगों को अफेक्ट करता है। क्योंकि एक बच्चे के सुसाइड करने पे या किसी एक स्टूडेंट के या किसी एक यूथ के सुसाइड करने पे जब कोई फंक्शन नहीं किया जाता, जब कोई वर्क नहीं होता है, तो आसपास के जो लोग होते हैं जो उससे जुड़े होते हैं वो भी डीमोटिवेट होते हैं। उसके साथ के जो बच्चे होंगे या कहीं उसके आसपास के जो बच्चे होंगे जिनसे वो कभी टच में रहा होगा या टच में होगा, वो भी इसी चीज़ से अफेक्ट होते हैं। उनको लगता है कि जब इसके लिए कोई बात नहीं किया, इसके माँ बाप ने इसके लिए नहीं किया, तो मेरे लिए भी कोई नहीं करता, मेरे लिए भी कोई बात नहीं करे, मेरे लिए गवर्नमेंट बात नहीं करे, मेरे लिए सोसाइटी बात नहीं करे, मेरे लिए मेरे कॉलेज मेरे प्रोफेसर्स कोई बात नहीं करेगा, तो मैं किसके पास जाऊँगा? तो ये उसके साथ साथ उसके पास के जो सोशल ग्रुप होता है, सोशल सर्कल होता है, उसको अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं ये सोशल ग्रुप जब बाहर जाते हैं, बाहर लोगों से इंटरेक्ट करके, तो उनके मन में भी नेगेटिव वाइब्स आने लगते हैं कि यहाँ पे कोई बात ही नहीं करता मेरे बारे में, इस चीज़ के बारे में कोई मुझसे बोलता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बाकी लोगों में भी इफेक्ट है। तो डायरेक्टली अगर हम ना देख के इसको इनडायरेक्ट एंगल से देखें तो ये काफ़ी लोगों को अफेक्ट करता है। यही मेरा टॉपिक है कि किस तरह से ये इनडायरेक्टली एज अ इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने जब लिटरेचर रिव्यू भी किया, यही मुझे गैप लगा कि डायरेक्टली तो आप सब जानते हैं कि डायरेक्टली कुछ नंबर्स हैं जो कुछ लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं कि इसने पर्सन ने सुसाइड किया, कि उसकी फैमिली को ऑब्वियसली बहुत ऐसा बर्डन होता है जो कोई नहीं देखना चाहता कभी लाइफ में, तो उनको अफेक्ट किया। लेकिन इनडायरेक्ट एंगल पे अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की। जैसा मैंने अभी तक लिटरेचर रिव्यू में पाया है कि इनडायरेक्टली डोमिनो इफेक्ट के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई होकर चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो इसी तरह से ये किस तरह से ये एक मल्टीप्लाई बन के लार्ज स्केल में काफ़ी लोगों को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है मैम, आई थिंक थोड़ा सा फीडबैक दे देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आई थिंक इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करो आप। मेंटल हेल्थ अपने आप में बहुत ब्रॉड इशू है, उस पर अलग से मेडिकल रिसर्च हो रही है। आई थिंक जो वर्किंग क्लास है, जो एक्चुअली जॉब करते हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है एंड वो उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, आई थिंक वो एक बेटर टॉपिक यहाँ पे हो सकता है। मतलब मेरे एंड से ये, बाकी थोड़ा सा इसको और नैरो डाउन करिए, आप टॉपिक को एकदम स्पेसिफिक करिए, एक अपनी नल हाइपोथेसिस आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड उसके अराउंड पे थोड़ी सी और रिसर्च करिए। दिस इज फ्रॉम माय एंड मैम। my feedback would be similar, but यही बात है कि I can understand कि you are very passionate about this. I think it somewhere has an emotional connection for you as well. ये थोड़ा dangerous trajectory हो सकता है when we are getting into PhD. PhD is supposed to be objective as far as possible. Passion अच्छा है, but इसको हमें as sir has told you, इसको direct करना पड़ेगा आपको किसी एक specific दिशा में। ठीक है, I get your concerns. I'm really happy that you are thinking about all of these things, but ये जो concerns हैं इनको हम PhD में इस तरीके से वाइड टॉपिक के अंदर नहीं इंक्लूड कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। उसको आप एक कंपोनेंट बना के इसके ऊपर बाद में आप पेपर्स लिख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक यू कैन रियली गो फॉर सच अ वाइड एरिया। सुपरवाइजर भी कोई अग्री नहीं करेगा। हाँ,
बिकॉज ये स्पेसिफिक नहीं है. देखिए इंटरडिसिप्लिनरी मैं समझती हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी समथिंग जो है, बट इसमें इंटरडिसिप्लिनरी भी नहीं हो रहा है. ये बहुत वाइड एरिया में जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप करिए बिकॉज यू हैव पोटेंशियल, राइट, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. उसको हमें थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, जो सर ने आपको ऑलरेडी बोल दिया है. आई थिंक फाइनल कमेंट्स मैम बताएंगे. हाँ सेम ही होगा. हाँ या पहले तो आई थिंक यू शुड थोड़ा सा स्पेसिफाई द टॉपिक. जैसे एज मैम सेड यू आर टू पैशनेट अबाउट इट एंड इट इज समथिंग व्हिच वी शुड टॉक अबाउट. बट देखो क्या होता है, जब आप पीएचडी में कोई टॉपिक लेते हो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, क्योंकि आपके सामने जो पैनल बैठे रहते हैं यू हैव टू कन्विंस देम दैट यू नो दिस टॉपिक इज वर्थ कि वो लोग लें. तो सबसे पहले तो थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी आपने जितने भी एक्सप्लेनेशंस दिए दोस आर वेरी वाइड एक्सप्लेनेशंस. तो जैसे क्या होता है कि मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया, बट आप जो बोल रहे हो वो इंटरडिसिप्लिनरी जा रहा है, वो अलग अलग लेवल्स पे जा रहा है. जैसे इसी में हम सुसाइड भी काउंट कर रहे हैं, इसी में हमने जैसे रिच लोगों को कैसे फिट करता है वो भी देख रहे हैं, इसी में यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ब्रेन ड्रेन, वो भी इसी में आ गया. तो आई थिंक इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सेकेंड, व्हेन यू आर डिफेंडिंग इट, लाइक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट अगेन जो बैठे हैं पैनल में, डू दे वांट टू टेक दिस, तो आपको ना थोड़ा ऐसा साउंड करना पड़ेगा वो यू हैव टू शो देम दैट दिस इज़ द अर्जेंसी. ये अर्जेंसी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपने इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत अम्ब्रेला वर्ड है ना, इट्स अ वेरी अम्ब्रेला टर्म, तो बहुत सारे आपने इसमें अपने पॉइंटर्स दे दिए, तो इसमें थोड़ी स्पेसिफिसिटी जो है वो चली जाती है. देखो एक रिसर्च टॉपिक ना दो चीज़ करता है, या तो आप कोई नई चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हो, ये नया नहीं है, ये सबको पता है. सेकंड चीज़ इज ईदर यू आर डूइंग अ रिविजनिस्ट अप्रोच, कि कुछ पहले निकला है बट आप बता रहे हो कि नहीं अब उसमें चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं दोनों में कहीं स्टैंड नहीं करती है. तो मे बी द पर्सन हु आर लिसनिंग टू दिस दे वुड आस्क यू द सेम थिंग कि ये तो पहले भी हो रखा है. मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओ, थोड़ा डेटा टर्म्स में आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, क्योंकि आप बोल अच्छा रहे हो बट यू शुड हैव डेटास टू बैक इट अप. लाइक आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जब आप जो लिटरेचर पढ़ रहे हो, लाइक अगर आपने बोला इस पे बहुत सारा रिसर्च नहीं हुआ है, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर इज दैट डेटा, हु सेज नहीं हुआ है, क्योंकि तो सबको पता है ना इस पे डेली रिसर्च चल रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है इन टर्म्स ऑफ योर सोर्सेज यू हैव टू बी लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग. यू हैव टू पूरा का पूरा पूरा पैनल को यू हैव टू कन्विंस कि हाँ भाई ये डेटा है, ये शॉर्ट कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. क्योंकि अभी ना ये थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड इट्स इंटरडिसिप्लिनरी, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये अभी थोड़ा सा सर जनरलाइज्ड भी है, थोड़ा स्कैटर्ड हो रहा है. हाँ. तो थोड़ा सा ना तुम्हारा स्कोप क्या है पीएचडी का, दिस शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर. मुझे समहाउ ये लगता है टॉपिक अच्छी, बट थोड़ा सा मुझे लगता है दिस कैन गो अगेंस्ट ऑल्सो, अगर थोड़ी प्रिपरेशन, और मुझे लगता है थोड़ी सी इसमें ना ब्रशिंग की जरूरत है. रेस्ट तो और जैसे यहाँ पे पैनल में तो चलो मैं इकोनॉमिक्स और मैम अलग सब्जेक्ट्स हैं, जब तुम कोर इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू दोगे तो फिर वो लोग तुमसे सवाल ज़्यादा करेंगे इस बारे में. तो इट शुड बी मोर ऑफ इकोनॉमिक ड्रिवन. तो थोड़ा सा वहाँ उसका वेट ज़्यादा हो. मतलब मेंटल हेल्थ अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब ऐसा कुछ तुमने गलती नहीं करी उसमें, बहुत बढ़िया, तुम लेके चल सकते हो उसको, बट थोड़ा सा बहुत क्लियर हो जाओ कि मुझे स्पेसिफिकली इस चीज़ पे काम करना है. मेंटल हेल्थ में भी मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है चूज़ करना है, मुझे इस पे काम करना है, एंड इसका क्या इम्पैक्ट है इकॉनमी पे. Economics primary and rest any other subject should be secondary in case you are taking it. कहा कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मेंटल हेल्थ होगा, तो वो गलत चीज़ है. आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है मेंटल हेल्थ, लेकिन इंडिपेंडेंट आपका कोई ना कोई इकोनॉमिक फैक्टर ही होगा. बिकॉज इवेंचुअली हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट चेक करें कि इकोनॉमिक्स पे क्या है. यू हैव टू मेक इट इकोनॉमिकली स्ट्रांग विद डेटास एंड ऑल. समझे, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग है मुझे लगता है. तो इस पे अगर आप वर्क कर लोगे तो फिर तो कोई बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. मैम any other issue with my interview, I mean communication skills या presentation? No, communication is on part. That's what ma'am also said ना, कि आप बोल बहुत अच्छा रहे हैं, बस डेटा चाहिए. डेटा और कंटेंट थोड़ा सा हो जाएगा भी, और थोड़ी मेहनत करेंगे बच्चे तो. हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे. दैट वाज द रीज़न कि हम लोग ने सेशन यहाँ पे किया हुआ है. तो ठीक है, तो लाइक मतलब सब बढ़िया रहा, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था शो है, एंड होपफुली ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. Yes, and rest you speaking good, there is no problem at all. So देयर इज नो इशू एट ऑल. बिल्कुल नहीं सोचना, दिमाग में कुछ नहीं लगाना, बस थोड़ा सा और रिसर्च करनी, अपने एंड पे काम करना है, एंड थिंग्स विल बी गुड. Thank you so much team. Thank you. Thank you so much. All the best. Thank you so much ma'am. Thank you so all much the sir. best.